सो जर्नी से स्टार्ट हुई थी कि ये चाइना गए थे, दे सो दैट दिस प्रोडक्ट वाज कमिंग टू इंडिया. हम लोग जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बीइंग एन एमएसएमई वी आल्सो थिंक ऑफ डेवलपमेंट और मूविंग फॉरवर्ड विद न्यू टेक्नोलॉजी. अगर हम एमएसएमई को ज़्यादा सक्षम बनाएंगे, इनको स्पीड में ग्रो कराएंगे तो वी विल ग्रो. ग्रो करने के लिए ना सबसे पहले आपका एक जो माइंडसेट है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड अ वेरी क्लियर विजन होना चाहिए. देखिए चैलेंजेस तो आते हैं, अब ओवरकम होने के लिए रास्ता भी हमें ही ढूंढना है. अगर हम कस्टमर्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रुक जाएंगे, वी वोंट बी एबल टू ग्रो आवरसेल्व्स. एमएसएमईज ना डर जाते हैं अबाउट द पॉलिसीज कि ओ इसके साथ इतने कंप्लायंसेस के मेरे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इतनी सब चीज, तो इतनी रेगुलेटरीज को मैं कहाँ से टिक करूंगा, किसकी हेल्प लूंगा. अगर बिजनेस में आप कूदे हैं तो डरना छोड़ दीजिए. Correct. Hello everyone, welcome to the Merchants Mic. Today in this International MSME Day, we have two eminent guests with us. One is Priya, who is the CEO of Supreme Smart Power Private Limited, and we have Subham from Accurate Multi-Layer Papers. Welcome Priya and Subham. First of all, thanks Priya and Subham. Welcome to Merchants Mic. Thank you. In this International MSME Day, first like to congratulate you and also wish you a very very happy International MSME Day. And let's start with Priya first. If you can help us understand what your company does, how many years it has been in this business, and then Subham from your. Yeah, hi. Thank you for giving us also this great opportunity also to coming on this platform. And myself, Priya Bhalla, and I'm into this electric vehicle business. This is a long journey of mine. When I just started doing jobs, when I was into that phase of my life कि मुझे job करनी है. Then 2012 I started with a manufacturing unit as a vendor development part पे. So I realized then I just did my hard works over there. One day I realized that something to be differently and start career अपना उसी में ही किया था. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ई रिक्शाज आ गए थे मार्केट के अंदर फ्रॉम 2012. Okay. So that was a time कि जब चाइना से very early startup. So so the consistency was there. एक माइंड में आ गया था कि अब इस लाइन को चेंज नहीं करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही एक रोड मैप बना करके अपनी इस लाइफ को आगे इसमें ही देना है. So we started that. Now this is Supreme Smart Power. I'm the CEO and co-founder for this company. And here we are the manufacturer of our electric vehicles. We started with the electric rickshaws, passengers, and then comes to the commercials. Now with the L5 category also, which has the speed of 55, and now just growing up. Great, and good to see human entrepreneurship. Because we always at the Trade India believe that how we can support human entrepreneurship. Okay, and happy to listen your story. And the journey. Yeah, Subham, how about you? Yeah. Hello, thank you for giving us this opportunity that we can join here today. My name is Shubham Goyal. I'm managing director of Accurate Multi-Layer Papers LLP. And this manufacturing unit is situated in Greater Noida. And we started in 2015. It was the first North Indian manufacturing unit that it started. इससे पहले एक industry थी South में, which was manufacturing rigid board, cardboard, but not at that scale and neither too many products that we have introduced today. Okay. The vision of this industry was my father has been in this industry for around 30 years in paper industry. So he started off with this industry with other partners. So journey से start हुई थी कि ये चाइना गए थे. They saw that this product was coming to India. It was being imported from Europe majorly. Smurfit Kappa was the main exporter and India was importing from it. They saw that the gap was here, that no one was manufacturing and providing it here. So that's how it started कि नहीं अगर यहाँ पे ज़रूरत है, requirement है, let's start off with it. And then we started off with the manufacturing. My father started off with manufacturing. Great. I joined it after Corona. Actually, I was not very keen to join it in business at such an early time. But in the Corona time, when I had to go back to my job after closing my MBA, my father said कि अभी Corona time है, it's not very good period. If work from home होता है तो कर ले, otherwise you need to come back to home business as well. क्योंकि यहाँ पे बहुत requirement भी थी उस time पे. अच्छा. So that's how I joined the father's business. Great, good to see that, like you said our interaction, you are the second generation in your business.
Also good to see young, people like you taking and owning the business. Okay, because आज के डेट पे क्या हो रहा है कि people are more career oriented, they look for, उनको दो तीन ही ऑब्जेक्टिव्स दिखता है, एंटरप्रेन्योरशिप उतना दिखता नहीं है ना, एंड they feel this as a risk, right? And maybe through this podcast, people will take you as an inspiration, saying that hey, we should, this is a journey and ये risk कुछ नहीं है, इसमें अगर मेहनत करोगे ग्रो कर सकते हैं, और इसमें और फ्रीडम है, एंड यू कैन थिंक Correct. अबाउट योर स्ट्रैटेजी, यू थिंक योर सेल्फ कि इसको कैसे बड़ा बनाया जा सकता है ना. ग्रेट टू हियर दैट. ओके, क्योंकि एमएसएमई के लाइफ में ना, मैंने क्योंकि लास्ट 22 साल से मैं एमएसएमई के साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि इन एमएसएमई को काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं डे टू डे में, एंड हर इंडस्ट्री का अपना चैलेंज है, राइट. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं एमएसएमई को लेकर, एंड हम कहते हैं कि एमएसएमई बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है. ग्लोबली भी ये देखा गया है कि 60%, नॉट इंडिया में, इनफैक्ट 30% होगा, ग्लोबली से 60% एमएसएमई जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है. प्रिया, व्हाट हैज़ बीन योर चैलेंज? आपके इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा एज ए एमएसएमई फ्रॉम योर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव? आपने बिल्कुल सही कहा संदीप जी। हम लोग जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट हैं एज एन इंडियन कम्युनिटी में, लेकिन चैलेंजेस इज द ट्रू चैलेंज विच आई फेस, जो मुझे एक्चुअल में फील होता है बीइंग एज अ पार्ट ऑफ एमएसएमई, बीइंग एज एन एमएसएमई, कि द नेविगेशन ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम्स, हाउ टू नेविगेट द जो भी पॉलिसीज हैं, वो समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एक छोटे एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाने में Okay. वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं. Okay. वो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च Yeah, करी हैं, yeah. लेकिन उस स्कीम्स कैसे पहुंचेंगी वो, इसका बेनिफिट क्या इसके है? बेनिफिट्स क्या हैं, करेक्ट. उसका रूट क्या है, रोड मैप क्या है, कौन इसको एडुकेट करेगा हमारे लिए, Okay. इसके रेगुलेटरी सिस्टम्स क्या हैं, Okay. और उसके कंप्लायंसेस इश्यूज क्या हैं. तो उसके बारे में ना एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन हम लोगों को, एमएसएमईज को, एक कुछ गवर्नमेंट को कैंप्स वगैरह, मेरे को लगता है कि हमने ये चैलेंज फेस किया. इनफैक्ट जो आपका इंडस्ट्री है फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारे सब्सिडीज वगैरह लेके आ रही है, नॉट ओनली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आई थिंक काफ़ी अवेयरनेस की, व्हाट आई अंडरस्टैंड, अवेयरनेस की जरूरत है. ओके, अवेयरनेस चाहिए इसमें. एंड शुभम, आपके इंडस्ट्री जो रिजिड बोर्ड है, या इस इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है? आपको रोज क्या फेस करना पड़ता है इस चैलेंजेस? मेजर इश्यूज तो जो मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बोला, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, बट हम तो इनिशियल फेज पे ही फंसे हुए हैं अभी. द मेजर इशू बीइंग कि अब रेनी सीजन जैसे स्टार्ट हो रहा है, एंड स्टिल वी फेस द इशू कि हमें पता है कि रेन शुरू होने वाला है, स्टिल वी नो द ड्रेनेज सिस्टम इज पुअर, roads are going to stuck, and we will face the water issues there. ओके. There are drainage issues, water issues that will be faced, and since our product is paper based, Okay. थोड़ा भी माल गीला हुआ, that's a waste, ओके. and that no one will bear that cost, we'll have to bear it. ओके. So ये issues होने के बाद भी हम एड्रेस कर भी सकते हैं, कई जगह एड्रेस करते भी हैं, बट वो सॉल्यूशन नहीं आया आज तक. ओके. वी आर, इंडिया इज इम्प्रूविंग, ग्रोइंग एट ए हाई रेट, नए नए रोड्स बन रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बट स्टिल जो ओल्ड रोड्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा. ओके. जो मेजर इश्यूज पुराने थे वो अभी भी हैं. So if I am talking about MSME or my plant, we are still on rental basis. We are looking for a good property, for a good place to move forward to. अच्छा. But the cost is very high. ओके. Being an MSME, we also think of development or moving forward with new technology. ओके. But what the issue is, we plan year ahead. Yeah. आज के अगर मैं रेट देखूं, प्राइसेस देखूं, like since we started last year, हमने गैस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कोशिश करी Yeah. to put heaters, post heaters to use streamlined post heaters. ओके. But the prices of the gas as PNG has increased, almost doubled. Yeah. So all our planning, all our opportunities have gone. So Okay. we thought we'll reduce the cost of our product, whereas we have to increase it because of it. ओके. ओके. आई थिंक हियरिंग बोथ ऑफ यू, मेरे को जो दो चीज़ें समझ में आ रहा है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ओके, ये और इम्प्रूव होना चाहिए. लाइक कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड ऑल, इफ यू सी दे आर नंबर वन फ्रॉम द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. सेकेंड, फ्रॉम द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव. ओके, क्योंकि कंप्लायंस का हम एमएसएमई के लिए और इजी कर सकते हैं क्या? वन डोर, वन विंडो पॉलिसी, जो भी, हाउएवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, वन विंडो पॉलिसी, वन विंडो अप्रूवल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस, दैट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर इट. थर्ड, मेरे को जो दिख रहा है कि अवेयरनेस के जो चैलेंजेस है, राइट, अवेयरनेस के चैलेंजेस की जो भी पॉलिसीज ला रहा है, क्या वो एंड
गोल है, एंड जो कस्टमर्स है उनके तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। एंड फिफ्थ, हियरिंग यू सो कि हर कैटेगरी के अपने चैलेंजेस है, आपके इंडस्ट्री का अलग चैलेंजेस है, क्या इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं क्या, बिकॉज आपका जो वाटर का जो चैलेंज है कि वेस्ट चला जाएगा जिसकी वजह से, तो क्या गवर्नमेंट इसको एड्रेस कर सकते हैं कैटेगरी वाइज स्पेसिफिकली? ओके। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने एक प्लांट का जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करते हैं कि प्री डिफाइंड पहले से ये फैसिलिटीज रेडी कर देता है एंड इंकरेज करता है कि एमएसएमई वहाँ जाए और उसको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए जहाँ के रेडी टू स्टार्ट हो, एंड इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। ऑफकोर्स इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बन रहे हैं, आई मीन गोइंग टू दैट डायरेक्शन। ओके। Yes. बट ये थोड़ा मेरे को लगता है कि अगर हम लोग को थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो शायद ये थोड़ा और स्पीड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एमएसएमई को ज़्यादा सक्षम बनाएंगे, इनको स्पीड में ग्रो कराएंगे, तो वी विल ग्रो फास्टर। ओके। No, I'd like to add on to it is Yes. the issue is not कि हम grow नहीं कर रहे हैं, हम grow कर रहे हैं, we are हाँ। manufacturing things, but उसे maintain करना भी जरूरी है। एब्सोल्युटली। So that is not happening. So आपने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, आपने उसको बनाया, आपने उसको Yeah, हैंड yeah. ओवर किया, हाँ। वी आर एट इंडस्ट्रियल प्लेयर्स इटसेल्फ, ठीक। पर उसको मेंटेन नहीं किया। अब Okay. वो रोड्स में बम्प्स हैं, अब रोड्स के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक्ड है, और हमें पता है कि बारिश आती है वो भर जाएगा वापस, ओके। बट दैट इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड। ओके। ओके। सो अगर वो क्लीन नहीं होगा, वो मेंटेन नहीं होगा, तो कितना भी आप बना लोगे, वो वापस वो इश्यूज आते रहेंगे। राइट, राइट, वेरी That's वैलिड the पॉइंट, thing. वेरी वैलिड पॉइंट। नाउ प्रिया, कमिंग टू यू इज आपने चैलेंजेस तो बता दिए, बट स्टिल लाइक शुभम ऑल्सो कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, ग्रो तो कर रहे हैं। ठीक है। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू हैव डन इन लास्ट, लाइक यू सेड 2012, राइट, स्टार्टेड द बिजनेस, तो where are you are here and you have grown, so what are the strategies you have used to grow your business? यस, ग्रो करने के लिए ना सबसे पहले आपका एक जो माइंडसेट है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड अ वेरी क्लियर विजन होना चाहिए कि वी हैव टू ग्रो इन दैट पार्ट, और उसी के बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स, स्टडीज, कंप्लायंसेस के ऊपर स्टडीज, वो सब चीज़ें करनी चाहिए। एज आई सेड ना कि ये मेरा चैलेंज था कि क्या हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं। मेरे अपनी ईवी सेक्टर की बात करूँ तो इट्स एन रोड सेफ्टी कंपनी ना, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द CMVR रूल्स, द कंप्लायंसेस, द approvals from the several of the departments, na, from the road safety departments, NHI, ICAT, ARAI. So मैंने जो किया उसमें सेल्फ स्टडी किया। ओके। CMVR की बुक्स पढ़ी, रेगुलेटरी सिस्टम्स पढ़े, कंप्लायंसेस पढ़े कि क्या एक व्हीकल को रोड पे उतारने से पहले उसका क्या कंप्लायंसेस होना चाहिए, और व्हीकल्स के लिए क्या ज़रूरी है, कितना स्पीड मैक्सिमम होना चाहिए, कितनी हाइट पर लाइट होनी चाहिए। दो मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द इंजीनियर बैकग्राउंड, बट दैट स्टडी, दैट सेल्फ स्टडी मेक्स मी दैट ऑन द पेज ना। सो अभी मैं ICATS के साथ, होमोलोगेशंस डिपार्टमेंट के साथ इंटच रहती हूँ, और काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है मुझे, अपने आप को रखना पड़ता है। एंड उसके साथ स्ट्रैटेजीज हमने ये बनाई ओवरकम करने के लिए चैलेंजेस कि in my company I'm using the young brains. Okay. Yes, so this time the young brains जो है ना वो एक आपके लिए बहुत अच्छा assets बन रहे हैं। जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं, इनके बारे में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक है। तभी हमें कुछ नई चीज़ बहुत अच्छे बेटर वे में, देखिए चैलेंजेस तो आते हैं, अब ओवरकम होने के लिए रास्ता भी हमें ही ढूंढना है। करेक्ट। एंड दिस इज सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, फर्स्ट इज कि जो बिजनेस आप करते हैं उसके इन डेप्थ चाहिए, और लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, रिसर्च कीजिए उसका क्या नीड है और उसमें काम कीजिए। सेकेंड विच आई कैन टेक अवे फ्रॉम यू इज पीपल, राइट, यू हैव टू हैव अ good brains in place, people in place, a good team, for the growth. And finally, what I say is, innovation important है, आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज ऑलवेज देयर व्हिच कैन ब्रेक द ऑल चैलेंजेस, अगर आपको ये तीन चीज में दिस थ्री पिलर्स अगर आप काम करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। ग्रेट, गुड पॉइंट्स। या शुभम, आपका व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? आप क्योंकि आपने कोविड के बाद ज्वाइन किया या कोविड के इसमें ज्वाइन किया, ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू हैव इम्प्लीमेंटेड टू ग्रो द बिजनेस? What I feel is, for any business to work, we need to
cater the customers problems first. Okay. So जब हमने शुरू किया था 15 में, तो इशू हुआ कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. Yeah. और उसके बाद जब हम कोरोना टाइम पे अब आ गए, उसके बाद हमने फेस किया प्रोडक्ट, अब हमने बना दिया, अब इसमें हम इसको प्रोडक्ट लाइन कैसे बढ़ा सकते हैं. Yeah. Yeah. So we were manufacturing white or grey rigid board. Then we started off with the golden, black for different products as well. Yeah. अब जो golden board होता है वो हमारा that is used for cake bases. अच्छा. So we pivoted to multiple product lines as well. Okay. अगर हम कस्टमर्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रुक जाएंगे, we won't be able to grow ourselves. Okay. So हमें उनकी और प्रॉब्लम देखनी है कि उनको हम कैसे और हेल्प कर सकते हैं अपने सेम प्रोडक्ट से. So we add on to our products and provide them the value. Okay. That is how we try to grow. Okay. इंडिया में जब हमने शुरू किया था 15 में, तो इशू वाज कि उस टाइम पे जो माल आता था, प्रोडक्ट दैट वाज बीइंग इंपोर्टेड, Okay. वो पर शीट के वाइज बिकता था. Hmm. वी डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्केट इटसेल्फ एंड वी सोल्ड इट एट पर किलो. Okay. सो पहले मार्केट को समझाना, माइंडसेट चेंज करना कि यार एक Yeah. शीट का जो वेट है उससे हम बेच रहे हैं. पहले तो कस्टमर्स एकदम समझने के लिए रेडी नहीं होता कि इससे वो माल ले रहा है, वो ही इज वेरी हैप्पी इफ ही इज गोइंग ऑन विद इट. बट वी नीड टू एजुकेट देम एज वेल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई शीट का प्राइस ये बनता है, बट वेट के हिसाब से वो कम हो रहा है. बिकॉज अर्लियर पीपल यूज्ड टू थिंक यार अगर हमने जो प्राइस बोला है एक्स अमाउंट है पर केजी, Yeah. वो कंपेयर कर रहा है उसको पर शीट से, Okay. देन ही इज टेकिंग इट कि वो ज्यादा है. बट जब उसको पर शीट के हिसाब से निकाला, देन ही सीज कि नहीं यार ये तो कम पड़ गया. Okay. Okay. सो समटाइम्स वी हैव टू एजुकेट द पीपल एज वेल. Okay. सो लाइक आई वाज सेइंग कि कोरोना के बाद हमने जो किया, जो बेसिस बना रहे थे, केक बेसिस बना रहे थे, या दारू के Okay. डब्बे जो बनते हैं वो बनते हैं ब्लैक बॉक्सेस से, ताकि Yeah. अंदर लाइट्स ना जाए. Yeah. तो हमने वो ब्लैक भी लगा के दिया, हमने ब्लैक के साथ कार्डबोर्ड शुरू किया. Okay. सो वी आर गिविंग मल्टीपल थिंग्स. सो फूड, अगर हम स्वीट बॉक्सेस पे जाएं जो Yeah. इसके लिए यूज होता है, वी गिव फूड क्वालिटी प्रोडक्ट एज वेल. Okay. सो हम अलग अलग प्राइवेट में चले गए हैं. वी हैव टेकन अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन एंड वी हैव इंक्रीज टू इट. Okay. Great. I think great. जो आपके strategy जो मेरे को if I have to summarize this, one is thinking backwards. Okay. When I say thinking backwards, आपने पहले customer का problem समझा and reverse काम Engineer किया किया उसको, yes. कि हाँ कि रिवर्स करके हमने सोचा कि इनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ वेयर यू सॉ द ग्रोथ. सेकेंड मेरे को लगता है जिसको हम लोग जो कहते हैं कि प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम समझो सोल्यूशन दो, एक फ्रेमवर्क बनाओ, ग्रो करो. And third, which is very interesting and which I always tell other entrepreneurs and MSMEs also, education. क्योंकि प्रोडक्ट एजुकेशन जब तक आप नहीं देंगे वो बाय नहीं करेगा. मे बी यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास होगा, पर आपको जाके एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि ये प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है और इसको कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो. एंड आई थिंक दिस इज हाउ दिस बिजनेस विल ग्रो. एंड दैट इज़ व्हाट आई सी चैलेंज. आज के स्टार्टअप्स में भी मैं ये चैलेंज देखता हूँ कि दे कम फ्रॉम ऑल द टेक्नोलॉजी IITs ऑफ द वर्ल्ड से आ जाते हैं एंड देन दे बिल्ड अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट को रीच आउट करना इज अ चैलेंज. एजुकेट करना इज अ चैलेंज. दे फील दैट नहीं, मैंने तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया, बट क्या ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए? आई मीन नीड ऑफ द कंज्यूमर वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत important बहुत है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई आई थिंक थिंक अपने प्रोडक्ट की नीड बनाना भी जरूरी है साथ में. या राइट, क्योंकि पहले ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई प्रोडक्ट था ही नहीं. इंडिया में सन बोर्ड चलता था पहले, करेक्ट बट वी आस्क्ड द प्लेयर्स टू स्विच आउट टू देम फॉर अ बेटर क्वालिटी. करेक्ट. So that टेक टाइम्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी Yeah, देख के yeah, लोग मूव ऑन करें, आगे नई चीज पे जाएं. सो वी हैव टू एजुकेट देम अकॉर्डिंगली. सो कमिंग टू यू ओनली शिवम, तो आपको क्या लगता है कि जो MSMEs है, जो बर्डिंग MSMEs है, आपको उनको क्या बोलना चाहेंगे फ्रॉम द स्ट्रेटेजी परस्पेक्टिव? वो अगर उनको ग्रो करना है तो क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए? अगर आप कुछ 3 पॉइंटर्स दे दे ओके, अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूंगा जो ग्रो करने के लिए चाहिए, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर, हिज नीड्स, देन सी इफ यू कैन इम्प्रूव टू ऑन टू इट. या आपने एक प्रॉब्लम समझी, आपने उसको सोल्यूशन दिया, अब आगे नेक्स्ट में आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो. इफ यू कैन इंक्रीज द स्पीड और द प्रोसेस एंड मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर देम इज Yeah. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी MSME. ओके. So that's what we are trying to do, and we are trying to improve our product line, because no matter how many problems you are solving it, Yeah. but the product and the service has to be good to continue with the next service as well. ओके. So our first target कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करके फर्स्ट ऑर्डर लेके आए. या सेकंड इज कि हम प्रोडक्ट लाइन और सर्विस इतनी अच्छी करें कि वो हमारे पास ऑर्डर्स आए. ओके. ओके. That's what I think we need to do. And what about you? Yeah, what will be your suggestion to the budding entrepreneurs? कि what are the strategies they should use to grow the business?
एमएसएमई को ऑप्ट तो बहुत लोगों ने किया है, Yeah. लेकिन एमएसएमई के साथ सस्टेन कौन कर रहा है, कौन रुका हुआ है, कौन उसके फायदे उठा रहा है, ये Yeah. बड़ा कहना मतलब मैंने नंबर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 100% में से 30% नंबर्स हैं जो आज हम एमएसएमईज का फायदा उठा पा रहे हैं, Yeah. लाभ Yeah. उठा पा रहे हैं। Correct. लेकिन मेरा ये कहना है कि एमएसएमईज ना डर जाते हैं Yeah. Yeah. अबाउट द पॉलिसीज Correct. कि वो तो इसके साथ इतने कंप्लायंसेस के मेरे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इतनी सब चीज, तो इतनी रेगुलेटरीज को मैं कहाँ से टिक करूंगा, किसकी हेल्प लूंगा, Yeah. तो वो क्या करते हैं अपना आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। Yeah. तो Yeah. पहले तो मैं एमएसएमईज के को कहना चाहूंगी कि अगर बिजनेस में आप कूदे हैं Yeah. तो डरना छोड़ दीजिए, Correct. Correct. Yeah. तो डरना नहीं है। नहीं, तो absolutely. पहले एमएसएमईज के रेगुलेशंस को, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप Yeah. पढ़ते चले जाएं, एमएसएमईज के आपके रूल्स फॉलो करते चले जाएं। हमको अपना जितने भी सब्सिडीज के सारी स्कीम्स हैं, लोन्स की स्कीम्स हैं, कोलैटरल अगेंस्ट लोन्स की स्कीम है, सब हमें मिलती हैं, Okay. बट द थिंग इज वी हैव टू सर्च इट ऑन द राइट वे। Yeah. Yeah. फर्स्ट पॉइंट तो ये कहूंगी कि उसमें लगे रहो, डटे रहो। ठीक है. सेकंड उसमें मैं ये कहूंगी कि जैसे कि शुभम ने बोला कि हमें कस्टमर की नीड को जनरेट भी करना है Yeah. और उनकी कस्टमर्स की नीड को समझना भी है, Correct. कंज्यूमर्स को, तभी हम अपना प्रोडक्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना पाएंगे मार्केट में। Correct. तो हमें कस्टमर्स को बताने के लिए, इनोवेशंस के लिए, जैसे बोला कि पहले केक का में बोर्ड होता था गोल्डन, अब हम उसको और इनोवेट करें, ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट में पहले एक जब मैंने बताया कि मैंने इतना पुराना ई रिक्शा, तो पैडल रिक्शा के ऊपर ना मोटर फिट करके चला दिया करते थे Yeah, चांदनी चौक yeah, में, yeah. इफ यू रिमेम्बर Yeah, दोस डेज yeah, ना। Still they are using it. चांदनी चौक एंड ऑल दैट, We say that you जुगाड़. टाइप ऑफ ना। Yeah. Yeah. तो अभी क्या हुआ, चाइना से रिक्शा आ गया, Yeah. हमने उसका इनोवेशन किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, उसको अपग्रेड करा, फिर उसको और अपग्रेड करा, फिर L3 करके हम लोगों ने उसका एक रेंज दे दिया कि इसका Correct. 25 किलोमीटर का स्पीड है पैसेंजर। Yeah. आप देखिए आज के जमाने में 1 से 1.5 लाख के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो रोजी रोटी कमा के दे जाता है लोगों को। Correct. एवरी रिक्शा पुलर, हर कोई जो बेरोजगार है ना, जो सबसे पहले कहता है कि अगर मेरे को काम करना है तो मैं क्या करूं, Yeah. ई रिक्शा खरीद लेता हूँ। अच्छा. हाँ. दैट इज वेरी सिंपल फॉर देम ना। Okay. और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है Correct. उन लोगों को Yeah, फॉर yeah. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। तो हमने फिर उसको अपग्रेड करो, मींस सेकंड पॉइंट ऑफ दिस की चैलेंज को मतलब इसको कैसे करना है, तो हमें इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को अब टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन में देना है, Okay. जिससे कि हम लोग मार्केट के अंदर एक न्यू डिमांड, न्यू जनरेशन, Yeah. कुछ भी हम लोग भी यूज करते हैं, तो आपको भी, हमको अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ हम यूज करते हैं, तो हमें एक अपग्रेडेशन चाहिए होता है Yeah. ना। Yeah. Absolutely. कि अब हम पहले नोकिया फोन यूज करते थे, अब हम टच बेस पे आ गए, अब हम Yeah, आईफोन पे आ गए, smartphones, स्मार्टफोन्स पे आ गए। इसी हर इंडस्ट्री के ऊपर यही है। तो Mm-hmm. एवरी एमएसएमई प्लेयर हैज टू यू मतलब टू बी वेरी स्ट्रांग विद द इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज, विद द कंप्लायंस पार्ट, रेगुलेशन पार्ट, Mm-hmm. ये सब चीजें उनको I think, काफी what I see is, innovation is key. इनोवेशन इज Innovation is key. Understanding customer need is key. And one more thing which I also think is, customer लाना बहुत आसान है, उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू Yes. करना बहुत Yes. ना, तो उसको कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर ऑब्सेशन अगर आप रखोगे तो आप ग्रो करोगे, नहीं कि हमने खाली कस्टमर ले आया और भूल गए, दैट इज वन मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। कमिंग टू कि हमने ग्रो तो बिजनेस को एक जगह तो लेके आ गए, बट हमने इस जर्नी में कुछ तो और इनिशिएटिव्स लिए होंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज व्हाट आर द मार्केटिंग एक्टिविटीज आपने किया होगा, क्या ऐसे करे होंगे जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स ले पाए या और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए, वांटेड टू हियर। मार्केटिंग एक्टिविटीज, कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग के बिना तो आपको पता है, लेकिन आजकल जो प्रोडक्ट डिजिटली अवेलेबल है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो हम फील करते हैं, Yeah. जो प्रोडक्ट डिजिटली आपका स्क्रीन पर है, Correct. बिकॉज द पीपल आर लाइक स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड Yeah, स्क्रोलिंग, जो स्क्रीन पर है वो डिजिटल मार्केटिंग में है, वो सबसे पहले वो टूल हमने यूज किया। Okay. सेकंड हमने लाइक अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, लाइक जैसे गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल से कंपनीज में हम लोगों ने अपने साथ अपने आप को इन्वॉल्व करा Okay. और वहाँ से लीड जनरेट करी। Okay. बिकॉज अभी हम लोग एक
लिमिटेड एरिया में बैठे Yeah, हैं yeah. एंड मेरे पहुंच वहीं तक है, तो मैंने अगर ऐसी ही हर 5 किलोमीटर सॉरी दायरे में मैंने बांट दिए, अपने नेटवर्क Okay. इंक्रीज कर दिया, Yeah. तो हम लोग का काफी अच्छा प्रेजेंस ऑफ द मार्केट बन जाता है। Okay. तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, नेट गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइप Okay. है, ऐसे आपने कंपनीज काफी एसोसिएट हो गए हम लोग, मार्केट प्लेस है, मार्केट different प्लेसेस, places में डिफरेंट आपने प्लेसेस में हम लोगों ने कोलैबोरेशंस अपने साथ में कर रखे हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हायर कर रखी हैं एंड वर्ड टू जस्ट वांटेड टू ऐड मोर क्वेश्चन हियर कि जब आप अपने प्लानिंग करते हैं तो what percentage of your budget you keep for marketing, because that is very important, and how do you decide that budget, because that is very important for the other MSMEs also to know कि uh, how you do the planning from the marketing perspective, क्योंकि आज के डेट में मेरे को भी लगता है कि what I hear from you is digital first approach, what you keep, because इससे reach जल्दी चला पहुंच जाता है yeah. So how do you plan that marketing budget? वेरी गुड क्वेश्चन ना। पीपल लोग बोलते हैं कि सेल नहीं हो रहा, Yeah, सेल में प्रॉब्लम आ रही है, correct. बट उसके पीछे का जो हमारी एक्टिविटीज हैं, हम लोग उसको कहीं ना कहीं हम लोग बहुत छोड़ देते हैं, कि हम देखते नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सेल इज टोटली डिपेंड ऑन द मार्केटिंग, Yeah, सो पीपल डू लाइक ऑल इन्वेस्ट ऑन द सेल्स पार्ट ना, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स फील्ड एग्जीक्यूटिव दे दिए, बट एक वो जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक छोटा हाई बैक में चला yeah, जाता है। yeah. So in my case, what I have a very good social media team with Okay. us, and in my office with the young brains who are the social birds, na. Okay. So yeah, A they good are word, social bird. social birds. Yeah, my marketing team is my social Yeah, bird, na. okay. So तो वो लोग हम लोग अपना जो बजट डिसाइड करते हैं 60-40 का रेशियो रखते हैं, and then 60 और we invest on the marketing. Oh, If nice. there is the marketing आपका स्ट्रांग है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग आपका स्ट्रांग है, देन सेल्स तो अपने आप हो जाएगा ना। Great, सो great, great. दैट इज I माय think पॉइंट ऑफ great, thought 60-40 rule. हाँ, ये मेरे लिए भी नया रूल है, मेरे को 80-20 रूल पता था, 60-40 रूल आज नहीं, दिस इज द टाइम, दिस इज द कॉल ऑफ द जनरेशन, दिस इज द Yeah, कॉल ऑफ, yeah. बिकॉज सी योर नेटवर्क इज योर द नेटवर्थ yeah, व्हाट वी आर। सो जितना नेटवर्क आपका एक्सपैंड होगा, उतना नेटवर्थ, उतनी वैल्यू आपके बिजनेस में आपकी आएगी। इनफैक्ट आपने बहुत ही अच्छा लाइन बनाया बोला है, इवन माय मेंटर ही ऑलवेज सेज दैट एग्जैक्टली द सेम लाइन, योर नेट वर्थ is your network. Yes. From personally also, right? If you have a good network, Network. then that is your net Network, worth. yes. Yeah. Coming to you, Subham, from the same, what are the marketing initiatives, or how you, how you plan, and how you invest, from the marketing perspective. Yeah. Our marketing strategy is very different from us. Actually, as she said कि जो बोर्ड पे दिखना चाहिए, नाम ब्रांडिंग होनी चाहिए, our brand is as we see it as a unsung heroes Yeah. और unseen heroes. Yeah. So हमारा प्रोडक्ट कहीं दिखता नहीं है, हमारा ब्रांड कहीं दिखता नहीं है। Right, वी आर दी इन पैकेजिंग इंडस्ट्री, हमारे बोर्ड के ऊपर दूसरे ब्रांड्स का पैकेजिंग लग जाता है। Correct. सो वी विल नॉट बी विजिबल एनीवेयर, Right. राइट। सो हम कितनी मार्केटिंग कर लें, विल नॉट रीच आउट टू आर कस्टमर्स और आर मैन्युफैक्चरर्स जो Right. वी आर गिविंग टू, बिकॉज इट्स totally B2B business, right? So what we do is we have different trade shows जहाँ पे हम participate करते हैं। Yeah. We make our brand visible there. Yeah. We majorly grow from word to word mouthing, तो उससे ही हम आगे grow कर सकते हैं word of mouthing से ही। Yeah. प्लस हम जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, इफ वी डोंट कीप ऑन इम्प्रूविंग और कीप ऑन एडिंग द वैल्यू टू इट, पीपल विल फॉरगेट इट, दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। Yeah. सो जब हमने शुरू किया था तब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी हमारी, Yeah. तो हमने उस पर काफ़ी R&D करी, हमने प्रोडक्ट सेट किया, और आज के टाइम पे 10 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं, Correct. राइट। बट हमें उन कस्टमर्स के साथ रिकनेक्ट रखना है, Yeah. कनेक्ट रखना है, रिकनेक्ट करना है और सर्विस प्रोवाइड करनी है। Mm-hmm. देन ओनली कैन वी कनेक्ट। अदरवाइज अगर हम कितना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, आवर ब्रांड विल नॉट ग्रो जस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल मीडिया। Yeah. We have to have that physical presence with them and connectivity, continue the connectivity to maintain connectivity with them. Okay. That's all we can do. So, from the marketing perspective, what I understand from Priya and Subham is, it depends on industry to industry. Okay. From people who had a brand, typically you have to look from 2-3 aspects. One, you have the right budget. I mean that, like Priya said, 60-40 ratio, 60% on the marketing cost, 40% is, from the other costs specifically. When it to marketing costs, you need to have a right brains, right team in place, which is like social birds within the organization, which will help you to bring that top of the funnel, increase that top of the funnel.
Okay. Tech participates in different trade shows or trade fairs, which Subham has suggested, because their product demand, their audience will be there in more in trade shows. Okay. Third, have presence in digital platforms. It can be any digital platforms, any B2B marketplace, or any other platform where your customers are coming for from the brand and digital presence perspective. Okay. Uh, I think there are some of the great takeaways from what Priya and Subham are sharing, and I hope this will help all the MSMEs when you look at from the marketing perspective. Now, coming to uh, the funding part of it, right? When we start a business, you need fund, and हर बंदे business को चाहिए, and when we grow, you need more fund, right? Because हमारे पास orders बढ़ जाते हैं, we are bootstrapped, we don't have any other source of funding, so. And then financial discipline is very critical Yes. for SME, because SME they work and hand to mouth, right? आज जो इस महीने कमाया उसी को हम use यूज करेंगे. कर रहे हैं. So just wanted to hear from both of you, that कि इनिशियल फंडिंग अगर किसी को चाहिए वो कैसे ले सकते हैं अगर लेना है तो, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लेके आए, क्या करें ताकि हम प्रॉफिटेबल रहे, उसको यूज करके अपने बिजनेस को भी ग्रो करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर बंदे को समझना अपने बिजनेस को ग्रो करने का. या फ्री ऑफ फंडिंग के बिना तो कोई है ही नहीं. Yeah. तो फंडिंग अरेंज करना अपने आप में एक चैलेंज रहता है. एक एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी सोच यही रहती है कि Yeah. फंड्स कहाँ से आएंगे, Yeah. एंड द फंड्स सही रास्ते से आना, सही जगह से आना, दैट ऑल्सो वेरी मैटर्स ना. Yeah. कि एमएसएमईज ने इसीलिए मैंने कहा था कि हमें एमएसएमईज की स्कीम्स के बारे में हमें Yeah. पता होना चाहिए, कितना लोन है, कितना हमने तो अभी जो अपनी अगर मैं बात करूं तो वी हैव रेज द फंड्स फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर्स. देयर आर एंजल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, Okay. and group of the companies. Supreme is the group of companies, and Yeah. we take the support from them, and it's an established business from 1988 Okay. na? Okay. So we are into the car carriers also. Acha, That's an okay. 500 trucks running on the road for the Maruti, Toyota, Great. Volkswagen and all na. Okay. So we arrange there from there, but for MSMEs, there are the collateral loans, the subsidized loans, Okay. and to maintain that funds, the real show is of the budgeting. Okay. It's a task of budgeting. You Correct. have to make the clear and cut budgeting for your कहाँ पैसा खर्च financial, करेंगे, where you will spend where you money. will spend money, कहाँ कैसे खर्च करना है, कितना ROI किसका आ रहा है, किसको देना है, कितने टाइम पे क्रेडिट्स का टाइम है नहीं Correct. है. सो यू हैव टू मैनेज दैट. और उसके लिए हम एक्सपर्ट्स जो होते हैं Yeah. उनके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा साथ में रहना पड़ता है. सो आई जस्ट कीप माई टीम ओवर देयर Yeah. Okay. विद द CS इज देयर, CA इज देयर. Yeah. वो टाइमली जो हमें गाइड करते रहते हैं, रूल्स भी, रेगुलेशंस भी, क्या फंड्स आ रहे हैं. Yeah. तो Yeah. बजटिंग इज द की Okay. for to take the financial decisions na. Okay. 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 So this I would way like we to add manage. one more question, because you highlighted that you raise money from angel investors also. Investors. So suppose if some MSME wants to raise money, how they can raise money from angel investors? All that basis on the individual projects na. The complete project report, DPR, the detailed project reports you have to propose for that project. क्या आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितने टाइम में आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, Okay. आपके ये क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, मार्केटिंग शोज क्या हैं आपके, Yeah. कितने टाइम में आपका सेल होगा, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेट कितना, क्रेडिटिंग टाइम क्या रहेगा. सो Okay. दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट बेसिस. Project. Okay. कि डीप आपको वो तो ये एंजल इन्वेस्टर मिलेंगे कहाँ, मतलब यू हैव टू गो समवेयर ना, कि हाँ. मेरे को एंजल इन्वेस्टर से मिलना है, वहाँ पर प्रेजेंट करना है. हम्म. तो anywhere the MSMEs can go and say, hey, I want to raise money. I know I want to raise money from angel investor. So any suggestions here? See, again, this is totally on the EV sectors के लिए. There are the many pages where you have to social media का जो पेज है ना, हम it's a technology. Yeah, कुछ लोग रील्स देखते हैं, correct.
कुछ लोग अच्छा है हमारी भी देखेंगे Yeah. लेकिन उसी पे आ रही हूँ कि मैं काम की रील्स देखे नहीं, तो ज्यादा नहीं, बेटर है obviously, तो yeah. वहीं से एंजल इन्वेस्टर आपको मिल जाते हैं लाइक दिस ऐसे कई शोज हैं Correct. आप मे बी आई होप सून आई कि आप किसी एंजल इन्वेस्टर के साथ एक मीटिंग एक शो कर रहे हो Yeah. and LinkedIn's are the page where they post Platforms. the platforms where they post for the financings and all so you can take it easily and again the network Network is important, right? network is So, important yeah. So I think I'll add a few more points here. So for the MSME, if you want to raise money, there are a lot of forums which is there, other than what we have suggested. There are forums like Indian Angel Network, AngelList, and there are different business forums which government have initiated. So go to these forums, specifically talking about Indian Angel Network. There are, small investors, more than 500 plus investors coming together at one platform and, um, you know, helping MSMEs and not only MSMEs but startups also to fund as per the requirement. The only dependency is, you have to, like Priya said, you have a right project in place, right, take in place, right, product, the they should have all this, what your company is doing, what is the profitability, next 5 years plans, and so forth, and upload that presentation there, and they will get back to you, and if they really like it, then they will fund you as well. Yeah. Uh, Someone from your side, I think the best platform to get raise money is from CGTME, I guess. That's the okay. best platform Yes. to go to, Yeah, especially in the initial time. yeah. Plus, they are not the only places as we said previously. Just अगर आप आज गूगल करोगे और उस पर एंजल ब्रोकिंग डालोगे या एंजल इन्वेस्टमेंट डालोगे यू विल गेट 10 pages listing 20 people Yeah, or 20 industries. So you have different platforms to reach out to them. correct. You have to, of course, perform well to show your background. You have Yeah. to give them whole your full plan of the execution for 5 years or more. Correct. Great points, so, and I'll add a few more things here. One is now, trading day also realize that, when we talk to MSMEs, they say that, they need support, okay? And that is where we work in three areas, okay? So one is access to market, right? We are helping MSMEs to broaden their horizon, once they are listed on our platform, they get buyers globally, right? They are able to see their businesses, right? Second is, access to technology. We give MSME with different technologies, which will help them to have the digital transformation. Third is access to credit, right? Like you said, उनको पैसे चाहिए, a working capital loan चाहिए. So we started a subsidiary within Trade India called Trade Udhar. Okay, Yes. Trade Udhar primary aim is to, help MSMEs, it's a fintech platform, help MSMEs to get an unsecured loan because this is another challenge, right? Because MSMEs are not that organized. काफी पहले मैंने Six Sigma किया था, in my early days, and उसमें मेरे को like absolutely agree with you कि Six Sigma यही कहता है कि अगर प्रोसेस है, अगर एक बंदे के लिए भी है तो 100 बंदे फॉलो करेंगे, और एक बंदे के लिए पहले बनाओ और सबको फॉलो करने के लिए बोलो. एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज share with my team and everybody, that what is critical to grow a business is three things: is people, process and governance. People अच्छे लेके आओ, yes उनको प्रोसेस फॉलो कराओ, और लास्ट में उसके फाइनल गवर्नेंस के मेजर करो कि वो क्या कर रहे हैं. इफ यू डू दिस थ्री, योर बिजनेस your विल business will What we flourish have always flourish learned is अगर एक गंदा आदमी जाएगा तो आप 3 अच्छी जगह पे एफर्ट भी डाल पाओगे. Yeah, आप उसी yeah. वरना उसी एक के पीछे ही पड़े रहोगे तो दैट Right. विल टेक ऑल योर एनर्जी आउट. हाँ, करेक्ट करेक्ट. काफी इंटरेस्टिंग चीजें, मेरे लिए भी काफी अच्छा लर्निंग है, आपके साथ, द काइंड ऑफ सजेशंस एंड फीडबैक्स यू गाइस आर गिविंग. कमिंग टू कि क्या होता है ना कि विद टाइम हमने भी देखा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, राइट? हर टाइम, एवरी ईयर वी सी कि आप अगर आप देखेंगे एआई ऑफ द वर्ल्ड, सडनली चैट जीपीटी आ गया, ChatGPT, एंड सडनली चैट जीपीटी आते सब एआई 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 एआई. चैट जीपीटी क्या करता है, कैसे काम करेगा, आई एम श्योर सारे बंदे अवेयर भी नहीं है, बट उसका बज बहुत सारा है, राइट? बहुत एआई का बज बहुत सारा है. सिमिलरली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, प्रिया, कि आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे. व्हाट इज द ट्रेंड विच इज चेंजिंग, एंड हाउ यू आर अडैप्टिंग टू दिस न्यू चेंजेस?
Again here I would say like the technology, the innovations, मतलब जितना changes आ रहे हैं हम सबको वो adopt करने ही पड़ेंगे Yeah. एंड करने पड़ते भी हैं बिकॉज आपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारने के लिए एक अच्छा वैल्यू, एक अच्छी डिमांड जनरेट करने के लिए Correct. उन सब पॉलिसीज पे हमें वर्क करना पड़ता है Yeah. एंड अपग्रेडेशन इज द की ना, मतलब अब हम सब भी तो अपग्रेड होते हैं Yeah, yeah. फॉर द टेक्नोलॉजी, तो Yeah. हर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन आता ही आता है. I'll add on what I know. Is from the electric vehicles. हम्म. So one is आज की डेट में अगर आप देखेंगे, not only I'm talking four wheelers, from the three wheelers perspective also, कि उसका जो सेल्फ लाइफ है वो, या ऑपरेशनल चैलेंजेस, उनका चैलेंजेस शायद बैटरी होगा. दूसरा चैलेंजेस होगा कि सेफ्टी होगा, बिकॉज वी सी लॉट ऑफ न्यूज फ्रॉम द ई रिक्शा पर्सपेक्टिव की. जस्ट वांटेड टू नो कि सपोज समबडी वांट्स टू टेक डिस्ट्रीब्यूटर of your product, so how they can take, what are the benefits they will get, what you as a company will support, kind of support you will provide them, what are the kind of minimum investment is required, I mean, if, that will be great if you can share that with us. Yeah. First of all, for our business, we as in the manufacturers की जो rules duties रहती हैं, they have to they have to create their presence in the states. Yeah. For the state approvals. Okay. So we as in Supreme, we are now are in I think 14 or 15 states we are available. We have the state approvals. Okay. So the distributor, there are several ways to get in touch with us. The dealerships and the distributorship for the CNFs, we are open to provide them for the Okay. CNFs. Okay. But there is really there is a very difficult test. They have to pass it on from us. Okay. As I say कि we are not in a hurry. Yeah, yeah. कि हर किसी को मैंने डीलरशिप दे दी, बिकॉज अगर कोई डीलरशिप लेने के लिए आता है हमारे पास, द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंपनी इज कि हम पहले उस डीलर की एलिजिबिलिटी को एंड सारा समझते हैं, एंड द विलिंगनेस एंड द विजन ऑफ दैट डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो, Okay. कि कितना लॉन्ग टाइम ये हमारे साथ स्टे करने वाले हैं, कितना लॉन्ग कैसे ये हमारे हम बिजनेस को अपना बनाएंगे. Yeah, yeah. वो विजन क्लियर होना उनके लिए बहुत जरूरी है. Yeah. उनके पास कितना फंड्स हैं, Yeah. क्या कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या स्पेस है, पर फिर भी देन भी minimum हम investment क्या है? एजुकेट करते हैं Okay. उस अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे Yeah, में. yeah, yeah. ट्रेनिंग्स देते हैं, डीलर ट्रेनिंग्स होती हैं, CNF ट्रेनिंग्स होती हैं, Okay. टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं. Okay. When they just clear about all that trainings, then we just offer them the dealership and Ah, distributorship. Okay. Because this is the vehicle जिसके ऊपर 4 सवारियों ने बैठना है. Yeah, yeah. एंड दिस इज ऑन द सेफ्टी कंपोनेंट. ऐसा अभी इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने ही शुरू किया है कि ऑन द डीलरशिप हमें कोई ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट कॉलिंग एंड फॉर द डीलरशिप कि आ जाओ भाई, आ जाओ एंड ले लो. Okay. नो, वी फर्स्ट एडुकेट दैट डीलरशिप. Yeah, yeah, yeah. We had our own technical training center for the dealers Yeah, yeah. and service centers. और उसका भी तो इन्वेस्टमेंट पार्ट पे मैं बात करूँ तो यस, ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस से स्टार्ट होकर के अब L5 कैटेगरी का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है. Okay. तो स्मॉल स्केल के अंदर यू कैन स्टार्ट विद द 10 lakhs. 10 lakh. Yes. Okay. And for the L5 category, if they want to go for the invest, तो एक व्हीकल का जो कॉस्ट है वो ही इट्स राउंड अबाउट टू 4.5 और 5 lakhs के बीच का है. Okay. तो इसका एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हो जाता है. दैट इन द मीडियम बायर्स So कैन. do you provide support to these guys from the from the distributor perspective? I want to know if some EMI facilities for their consumers. Do you give such kind of facility to them? We have the finance types, bank Okay. finance types, along some NBFCs are there with us, Okay. and वो हम लोग के manufacturers के types होते हैं, and the dealers के भी types होते हैं. We can help them to create their that also. Okay. And the vehicle is easily can be financed, and वो जो end user है उसका dealer से बहुत easily finance हो जाता है.
There is a normal KYC Okay. and government बहुत support कर रही है Yeah. with the Mudra loans. Yeah. SBI and all अच्छा. they've been getting the Okay, so funded, people can but the avail KYC this, should be very clear. Okay. लोग बोलते हैं कि MSME ये सॉरी मुद्रा लोन्स क्लियर नहीं होते. Yeah. आपका KYC अपडेटेड है, if you're eligible, why don't they won't give you the loan ना? Great. Because सरकार तो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है ना. Yeah. तो आपकी भी तो एक नागरिक की ड्यूटी, एक सिटीजन की ड्यूटी भी ये बनती है कि उसकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए. कोई तो आपको लोन मिलेंगी और Right. आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ आपको वो सपोर्ट करेंगे. एंड गुड टू सी दैट आपने काफी एक डिसिप्लिन वे पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड करने के लिए प्लान मतलब प्रोसेसेस बनाए हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट गुड It's क्वालिटी quality. एंड हाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट Yes. पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर ब्रांड, and how that distributor will take your brand to the last mile. लास्ट I माइल. think it's a great way to onboard a distributor. शुभम, फ्रॉम योर साइड आपका कैसे होता है? कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है आपके प्रोडक्ट का तो कैसे ले सकता है? व्हाट आर द क्राइटेरियाज यू लुक इनटू इट? फर्स्टली वी सी कि उसको बेसिक पेपर की नॉलेज है या नहीं, अच्छा. इज व्हाट वी कांट टीच एट द इनिशियल टाइम. लाइक दे आर टीचिंग एवरीथिंग, दे आर गिविंग क्लासेस, वी कांट डू दैट. Okay. अगर उसे बेसिक नॉलेज होगी तो ही विल बी एबल टू कन्विंस द कस्टमर टू टेक और अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ. Yeah. Right, which is very difficult in our case. Yeah. So that's the issue that we are also facing with the get distributor as well. Yeah. So we get the leads, but if they are not the same background, it gets difficult for us. Correct. Plus, we tell them the benefits of our product, but we can't tell them the product from the scratch itself. Yeah. That's why we tell them कि भाई हम FSC certified है, Yeah. हम ROH compliance करके दे रहे हैं आपको, Correct. जिससे कि कोई जैसे पजल गेम्स वगैरह हो गए, कोई बच्चा मुंह में ले रहा है तो वो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है उसमें. Correct. जो हम एटलीस्ट हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उनमें Right. जो उसके पेपर लग रहा है, कुछ लग रहा है, उसमें हम नहीं ले सकते, बट हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, तो हम उनको ये चीज़ें तो क्लियर कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के लिए या इन हाउस प्रोडक्शन के लिए भी, हम वो क्लियर कर सकते हैं. बट डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिक नॉलेज देना इज नॉट इन आवर Okay. मोड. अच्छा. इट विल नॉट हेल्प अस और देम. तो पेपर का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. हाँ, थोड़ी बेसिक नॉलेज होना कि GSM क्या होता है, कितना Yeah, बोर्ड right. लगता है, कितने थिकनेस होती है, Correct. वो चीज़ें उनको पहले से पता होगी तो इट विल हेल्प. इनफैक्ट इंडस्ट्री भी पता होना इम्पोर्टेंट है कि किस इंडस्ट्री में Definitely. होगा, है ना? Definitely. Because at this time the industry is not very good, in a very good place right now. The prices are also changing on a daily basis majorly. Got it. Whereas that was not the situation before the corona. Okay. पहले एक stagnant price था, जो fixed price था वो चलता रहता था. But right now it's not. तो हम भी बोलते हैं कि भाई हमारा जो terms and conditions when we write it down, Right. so our payment terms is आज PO का साइन हुआ है तो it's valid only for 7 days, Okay. for a week. उसके बाद prices change होंगे तो you have to renegotiate. Whereas few people do not understand that. Correct. कि यार नहीं, हमें तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स की नहीं, मैं तो आगे डील कर ली है, कर लिया. वी कैन नॉट हेल्प दैट. Okay. दैट्स आवर कंडीशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो. तो फिर आप इनको सपोर्ट क्या देते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स को? अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो उनको और आपके यहाँ से कुछ सपोर्ट भी मिलता है ना? यस. सो अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेता है एक पर्टिकुलर प्लेस की, तो वहाँ पे कोई भी कंज्यूमर के पास माल जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, तो थ्रू वायर डिस्ट्रीब्यूटर ही जाएगा. ओके. प्लस दे विल ऑल्सो हेल्प अस कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी कस्टमर को वहाँ चाहिए, इफ इट्स नॉट अ फुल ट्रक लोड, तो वो उसके पास ही मिल जाएगा, बिकॉज ही इज कीपिंग दैट स्टोर हाउस, वेयर हाउस फॉर अस, एंड ही इज सेलिंग इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ओके. Plus the product availability is also important. So Yeah. what we cater is we provide them with the service कि हम आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द आपको डिलीवर करेंगे. Yeah. That the kind of services that we can help with, Correct. rather than the full information from scratch. Okay. So Great. we can provide the services, not the full knowledge from scratch. That is where we lack. Okay. Plus we also have to see the conditions and the distributor head needs to understand it as well. Yeah, I'll give you an example. Okay. कि अभी तक यहाँ बहुत ड्राई सीजन था इन दिल्ली एंड Delhi, NCR. yeah. अब वो प्रोडक्ट गया मुंबई, वहाँ बारिश हो गई, Right. तो you'll have to see कि वो मॉइस्चर जो है वो पेपर हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. Correct. सो उसके हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंस आएगा उसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर समझ ही नहीं पाएगा, कंज्यूमर विल पैनिक, Yeah. राइट? ही नीड्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, it's very important for distributor to understand. Only then he will be able to convince the customer. Correct. If customer panics and distributor does not know it, he will also panic और वो छोड़ देगा प्रोडक्ट को. That's why Yeah. then education to the distributor is must. Because distributor को नॉलेज नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा. Absolutely. Before the customer, this distributor has to have that knowledge and the confidence in the product itself. Correct. Only then we'll be able to help. So why I'm smiling is, I'll just share my yesterday's one experience, So one of my friend met with an accident और उनको यहाँ पर चोट लग गया और डॉक्टर ने बोला कि आप MRI करके आओ.
MRI किया और शाम को मेरे को उसने रिपोर्ट भेजा और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था. इट वाज अ 2 पेजर रिपोर्ट. ओके, सारे बोल्ड में थे, इतने बोल्ड में, एंड ऑल रिटन इन देयर लैंग्वेज, राइट. तो 2 पेजर में सारे बोल्ड थे और मैं तो डर गया कि मतलब MRI में 2 पेजर सारे बोल्ड में क्या लिखा हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. मतलब देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वर रिटन एंड आई जस्ट शेयर्ड दैट विद वन ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड. और उसने मेरे को कॉल किया, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी, टेंशन मत ले. What I'm trying to This is the way that Yeah. what I'm trying to relate is, तो उससे because I was tensed, हाँ. कि ये इतना प्रॉब्लम लिख दिया है. And the other one, the doctor who understands this language, said that this is not a problem. It's a very small, mild problem. No, nothing to do. Yes. Take rest for 5 days. As simple as that. So I'm just relating you, Definitely. कि अगर knowledge is बंदे- must for the Knowledge is particular must. field. ना. I think now, final question to both of you is, the business is सबसे important critical होता है customer service, right? सबसे important है. अगर बिना customer service हम grow ही नहीं कर सकते, right? So just wanted to know from you, what are the things you do to ensure that that customer satisfaction and customer service is up to that level, so that you are, that is helping you to grow the business. What are the things you do and take care of, when you think about customer service? Yeah. कस्टमर सर्विस इज द मेन की ना. मतलब एक बार प्रोडक्ट को बेच करके भूल जाना इज नॉट राइट. प्रोडक्ट इज योर्स. आपको उस प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी मार्केट के अंदर बना के रखनी है. दैट यू हैव टू मेक फॉर द ओनली फ्रॉम द कस्टमर्स एंड फॉर द आफ्टर सेल सर्विसेज. सो पहले जैसे मैंने बोला कि एक पार्ट था कि मैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती हूँ. सेकेंड पार्ट हम इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में. आफ्टर सेल सर्विसेज इज स्ट्रॉन्ग, मार्केटिंग इज स्ट्रॉन्ग, देन सेल्स इज योर पार्ट. Okay. तो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए हम लोग अपना डेली रूटीन के ऊपर जो रूटीन चेकअप्स जो हम व्हीकल्स के लेते हैं, जैसे आप लोग गाड़ियां खरीदते हैं, Yeah. सो देयर इज अ बुकलेट विद यू. Correct. See, these are the free services, Yeah. the running kilometers or Yeah. whatever, है ना. So there are some steps they have to follow. So हमारे जो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशंस जो होती हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें यही एजुकेट कराया जाता है कि once you sell the vehicle, so there is a call center. You Yeah. have to give a call to the customer. Correct. कि आपको कस्टमर को कॉल करना है कि आपकी गाड़ी को बिके हुए 30 दिन हो गए हैं, 45 दिन हो गए हैं, या वट एवर द किलोमीटर्स विच एवर कम फर्स्ट ना. सो आपका सर्विस ड्यू है, प्लीज कम फॉर द सर्विस. सो दिस हाउ वी कैन मेंटेन फॉर द सर्विस कॉल्स Yeah. एंड द AMC is there. So Okay. you have different kind of plans with us, like AMC plan Okay. and service strong network, and the service on mobile, service on Correct. road. Yeah. So we have created our small centers, service Okay. centers at our dealer network. Yeah. जो और कुछ तो इतना इंटरेस्ट आ गया डीलर्स को Yeah. कि जो डीलर्स बने उन्होंने ही अपना सर्विस स्टेशन खोल Oh, लिया. okay. सो Interesting. दैट इज अ वेरी, मतलब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा. Yeah, yeah. एंड और पीसफुल रहा हम लोगों के लिए Correct, yeah. कि जहाँ से गाड़ी बिक रहा है वहीं Yeah. पे अगर उनको सर्विस स्पॉट मिल जाए, Yeah. तो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं ऑप्शन मिल Absolutely सकता. agree. And this is the future also. दिस इज द फ्यूचर ऑल्सो. Because people tend कि मेरे को, अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे सिटी में ही मिल जाए. मेरे सिटी में ही मिल जाएगा. Yeah, yeah, yeah. अब- And that adds to value from the Yes. brand perspective, because लोग शायद उस ब्रांड को प्रीफर करता है जिसका सर्विसिंग सर्विसिंग. अच्छा भी हो, पास में भी हो. हाँ. Yeah. So Okay. this is how we cater all these things. कि Okay. आफ्टर सेल सर्विस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. Okay. AMCs के हमारे साथ हैं. Okay. एंड 3 थर्ड पार्टी एजेंसीज को भी हमने हायर किया Okay, हुआ है, अपने okay. साथ इन्वॉल्व किया हुआ है फॉर द हु टेक केयर फॉर द सर्विस. Okay. Once the vehicle sold, we give all that booklet to them. Okay. So they take care, they maintain the all records for Okay. us and for the, so they are all another MSME. Okay. We are in support to them. So Acha. we shake hands. So you have with them. hired a So, third party third party to ensure that, to ensure that service part Okay, great. with us. So this is how we are Maintaining the customer services and क्योंकि बिजनेस की एक ना सबसे लाइन है. मेरे हस्बैंड ही इज आल्सो इनटू अ बिजनेसमैन, इज इनटू अ डिफरेंट बिजनेस दो, बट वो कहते हैं कि बिजनेस वो करो जिसमें रात को चैन से आके सो जाओ, Yeah, yeah. नॉट विद द बर्डन.
Yeah. So if you have a burden on your mind, so Yeah. it means your business is not running good. Yeah. Okay. So take a breath and मतलब अपना peaceful business आप Yeah. कीजिए. वो तभी पॉसिबल है जब हाँ. आप जो आप एक processes, या factors, सारे एक फैक्टर्स में आए roadmaps, हैं तो vision, mission and investment, funding सब बहुत clear अगर होने चाहिए. प्रोसेसेस है तो आप आराम से प्रोसेस Yes, ड्रिवन अगर जो driven. भी चीज बनेगा आई गिव एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स पर से आप मैकडॉनल्ड्स किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में दिखाएंगे आपको टेस्ट सेम मिलेगा, अलग नहीं अलग मिलेगा। नहीं मिलेगा. Right. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो और प्रोसेस ड्रिवन है, राइट? सेम गो स्टारबक्स एंड ऑल, यू विल गेट द सेम कॉफी, सेम टेस्ट एनीवेयर, राइट? Yeah, Subham, how do you take care of this, in terms from the customer service perspective? Our services is not that post service is not that required as much as yours product. For us is when we talk about service, we need to deliver the product in right time. Yeah, We need to deliver the right product, yeah, and we need to maintain the right tolerances. correct. So for our product, it's just 3 to 5% of tolerance is available. Acha. So after even in post services, if there is an issue, we go. Yeah, Our production person will go. He'll Yeah. check the product. He'll see the tolerances. If Correct. it is light within the tolerance, we cannot help them more than that yeah, because if the tolerance given है तो वो उसमें Mm. it will fall under it. If not, then we'll try to help him. Yeah. And if the customer is not satisfied, we'll try to build the product as well. yeah, yeah, Which happened in the earlier time when we started with the product manufacturing. yeah. Whereas now we do not face those issues currently. Okay, okay. Our major service factor lies in the delivery of the product itself. Yeah, That it should be delivered at the right time and the right product is delivered at the okay, time. okay, okay. So just to summarize, from the customer service perspective, what I hear from you is, one is marketing, other one is after sales service. ये दोनों sales से related है. If you can work on these two things, you will grow, Yes. and your customer will be satisfied. Because you also have to think beyond, to build a right team. Maybe you have to hire a third party to ensure that the customer is satisfied. From Subham, your perspective, not necessarily every business will require, to have that, but a business will have a different after sales service also. So in your case, in your industry, it's very important that you deliver the product. कि product अगर आप टाइम पे डिलीवर करना, वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होगा. सेकंड, क्वालिटी, जो क्वालिटी बोला है वो क्वालिटी डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बिकॉज उससे एक फायदा ही होगा, वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वर्ड ऑफ माउथ होगा, तो आपका रेफरल बिजनेस बढ़ने का चांसेस बहुत हाई है. अदर देन दैट, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि मैंने सारे एमएसएमई को ये सजेस्ट करता हूँ कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए व्हेन यू ग्रो. कि आपका कस्टमर बेस जब बढ़ता जाएगा, आप बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा, आप कितने बड़े टीम्स रख सकते हो, सो दैट इज़ वेयर आई वुड सजेस्ट दैट आप बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें, फ्रॉम द सैस प्लेटफॉर्म. आप एक सीआरएम यूज़ करें कि आपको पता चल जाए, डैशबोर्ड पे कि आज कितने सारे कस्टमर्स रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं, कितने सारे कस्टमर्स के सर्विसिंग के लिए रेडी है, कितने सारे कस्टमर्स को टच बेस करना है. और ये सारे ऑटोमेटेड हो, व्हेन आई से ऑटोमेटेड, देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज विच इज़ देयर, जहाँ आपको रूल बेस बनाना है. और रूल बेस के बेसिस पे, क्योंकि आज के डेट में मेरे को लगता है कि सारे बिजनेसेस व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, तो रूल बेस पे व्हाट्सएप में एक मैसेज चला जाए कि आज आपका रिन्यूअल ड्यू है, या आपका मेंटेनेंस ड्यू है, आपके सर्विस ड्यू है, या आज मेरा सर्विस का बंदा आपके पास पहुंचेगा. यूज दोज टेक्नोलॉजीज टू ऑटोमेट दैट, सो दैट आपका एक बंदा जो कॉल करके करता था, अब वो टेक्नोलॉजी कर लेगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑटोमेशन विच कैन बी प्लान ऑन व्हाट्सएप. यू कैन बिल्ड अ चैट बॉट दे, कि चैट बॉट जो है आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा है, एंड वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं, एंड एंड ऑफ द डे आप उसी को सर्व करना पड़ेगा जिसको नीड है. सो ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव. थर्ड इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैंने कस्टमर सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्ट. कि आप एक बार प्रोडक्ट्स ले लिया तो उनके साथ आप कितने बार कनेक्ट हो रहे हो, दैट फीडबैक मैकेनिज्म. एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, फीडबैक मैकेनिज्म बहुत बार आप कर सकते हो. सो दीज आर फ्यू सजेशंस व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग योर कस्टमर सर्विस यूजिंग टेक्नोलॉजी. Finally, Priya and Subham, because today is International MSME Day, and I'd like you to, take this platform and an opportunity to wish all the MSMEs and our, viewers who will be viewing this podcast, Priya, first you and then Subham. Yes. First, thank you again. मतलब आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया फॉर टू ब्रिंग सम MSMEs ऑन द प्लेटफॉर्म. लोगों को पता चले कि MSMEs क्या हैं, Yeah. MSMEs की क्या फ़ायदे होते हैं. और मैं चाहूँगी कि सारे जिनके छोटे ड्रीम्स हैं ना, दे कैन कन्वर्ट इनटू दैट रियल बिजनेस. MSMEs की स्कीम्स को हेल्प
से हेल्प ले करके yeah. उनसे एजुकेशन जो अपने आप को अपग्रेड करके एमएसएमईज की स्कीम्स के ऊपर काम करके, तो सभी एमएसएमईज मतलब सरकार है Yeah. हमारे साथ Okay. जो हमारे को सपोर्ट करती है. ओनली द थिंग इज वी हैव टू चूज आवर पाथ, Yeah. कैसे हमें काम करना है. और बस विजन क्लियर रखना चाहिए अपना. Okay. एंड दैट इज आई थिंक. Great. Thank you. Yeah. Firstly, I'd like to thank you for this opportunity, Yeah. and I'd like to congratulate every MSME player that you have made it. Yeah. You should be proud of yourself and just continue with what you are doing. Okay. Problems हमेशा आएंगी, Yeah. issues हमेशा होंगे. Correct. The only thing is to keep continuing the fight for it, Yeah. and you will do great. Okay. So that's all. Thank you. First of all, Priya and Shubham, thank you very much being part of this podcast. And in behalf of all three of us, to all the MSME community in this International MSME Day, wishing you a very, very happy International MSME Day, and hope this conversation will help you to, take some kind of knowledge and feedback and suggestions which will help you in your businesses as well. Thank you very much. And thank you, Priya and Shubham. Thank you. Thank you. Very much.